Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Almighty Allah, in the name of Lord, who is the most beneficent and the most merciful. Is the lesson synopsis. A lesson name is synopsis. Lesson number 2. The Swiss family Robinson. Okay, dear people, you might ask, what is the meaning of synopsis? आप लोग पूछेंगे सर synopsis का मतलब क्या होता है. So all my boys and girls, don't worry. I will show the meaning of synopsis. Synopsis. Can you see the meaning of synopsis here on your screen? Just please roll down. You will see the graphic novel, then letter is synopsis. Can you see synopsis? दिख रहा है आपको? Yes. Synopsis means plural noun. Synopsis, a summary of a piece of writing, a play. किसी खेल नाटक आदि का, है ना, किसी भी खेल वगैरह का जो मेन आउटलाइन होती है ना, खास हिस्सा, दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस. समरी भी बोलते हैं उसको. इट इज कॉल्ड समरी ऑल्सो. गॉट यू पीपल? सिनॉप्सिस का मीनिंग. यस. Swiss family Robinson is well known adventure novel. The Swiss family Robinson, ये नाम है, उस नॉवेल का नाम है Swiss family Robinson. What is the name of that novel? What is the name of the novel? Family Robinson. Very good, very good. What's your name, dear? Sarah. Sarah, thank you for your answering, for your communicating. As I said, all you people, this lecture is being recorded. लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा रहा है. जो भी आंसर देगा मैं उसका नाम लूँगा, और ये लेक्चर जो है ना, आई विल पुट ऑन यूट्यूब चैनल. उसका नाम जो है ना पूरे वर्ल्ड में जाएगा. सो प्लीज़ 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 कम्युनिकेट विथ मी इफ़ यू वांट. अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुने, इफ़ यू वांट दैट वर्ल्ड मस्ट हियर यू, सो हियर द opportunity to talk, to communicate with me. People, please listen, talk to me. If I question anything, you answer properly. If you don't know the answer, I will help you out. ठीक है. So the Sarah Ahmed Khan said, this novel's name is The Swiss Family Robinson. It is a well-known adventure novel. Well-known means famous. Well-known means famous. एडवेंचर नॉवेल. यू ऑल नो दैट एडवेंचर, बिकॉज आप लोग बहुत एडवेंचर करते रहते हो, है ना. ट्रैकिंग वगैरह पे जाना, जंगलात में जाना, फॉरेस्ट में जाना, है ना, जहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी की जाती है जो जान को जोखम में डाल दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एडवेंचर नॉवेल. नॉवेल, ठीक है. नॉवेल मीन्स बड़ी सी बुक जिसमें एक ही स्टोरी के बारे में लिखा जाता है. इट इज़ नॉट अ मैगजीन. मैगजीन इज़ डिफरेंट, नॉवेल इज़ डिफरेंट. नॉवेल में एक ही चीज़ के बारे में लिखा जाता है, एक ही स्टोरी को लिखा जाता है, लंबे बड़ा चढ़ा के. ओके. वेल नोन एडवेंचर नॉवेल दैट पीपल ऑफ मैनी कंट्रीज हैव enjoyed. That people of many countries have enjoyed for more than 200 years. For how long people are enjoying with this book? For how long? More than 200 years. Okay, answer must be complete. The people are enjoying for more than 200 years. Sarah, well done. देखो, सारा इज चेकिंग द चांसेस. सारा एडवांटेज ले रही. प्लीज़ अदर पीपल, अगर आप लोग को आगे नहीं बढ़ने का ना, तो आई एम टेलिंग यू पीपल दैट सारा विल बीट यू. सारा विल डेफिनेटली बीट यू. प्लीज़ डोंट लेट दिस सारा बीट यू पीपल. आपको समझ में आ रहा है? आप लोग सारा को, अपने आप को हराने मत दो. सो प्लीज़ आंसर. माई क्वेश्चन विल बी अ वेरी ईजी. I know that you people are not graduate, you people are not that's called highly qualified. You are still students. You are still students. So I will ask the question according to your abilities. So boys and girls, what is the name of this novel? Swiss Family Robinson. Yes, The Swiss Family Robinson. Is this novel adventure novel? Yes, sir. This novel is adventure. Yes, well done, well done. Sarah and other boys, what is his name? एक लड़का और बोला था, क्या नाम है उसका? What's your name? Sorry? Sajid. Sajid. Well done, Sajid. So Sarah and Sajid said this novel is adventure. Well done.
and for more than 200 years people have been enjoying, इसको देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं. Okay, it has also been made into graphic novels and films. ये जो रॉबिन्सन की जो नॉवेल है ना, स्विस फैमिली रॉबिन्सन, इसके ऊपर पिक्चर भी बनाई गई है, इसके ऊपर पिक्चर्स भी बनाई गई है, मूवीज़ भी बनाई गई है. एंड ग्राफिक नॉवेल्स, यू जस्ट स्क्रॉल डाउन, आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना उसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, यू विल गेट द ग्राफिक नॉवेल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राफिक नॉवेल? ग्राफिक नॉवेल ए फॉर्मेट है ना, नॉट अ जेनेर, नॉट अ जेनेर. ग्राफिक नॉवेल्स कैन बी फिक्शन, नॉन फिक्शन, history, fantasy or anything in between. Graphic novels are similar to comic books because they use sequential art to tell a story. आपने वो कॉमिक बुक देखी है, कॉमिक्स बुक, उसके अंदर वो सब तरह तरह की पिक्चर बनी रहती है ना. कॉमिक्स बुक के अंदर तस्वीर भी बनी रहती है, ठीक है. तो कॉमिक्स बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स आर सिमिलर इन सम वे, इट इज़ सिमिलर. कुछ हद तक दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज़ है कि वो भी एक तरह की पिक्चर वाइज रहती है, बुक्स ही रहती है बट इन द फॉर्म ऑफ दैट पिक्चर्स, ठीक है. चलिए, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स. आपने बहुत सारी नॉवेल की बुक्स अगर देखी होंगी ना, तो नॉवेल के अंदर पिक्चर्स भी रहते, खाली नॉवेल नहीं रहती, तरह तरह के फ़ोटोज़ भी बने रहते हैं, मार धार के, जानवर वगैरह के, जैसी भी नॉवेल रहती है अकॉर्डिंग टू दैट नॉवेल देर आर द पिक्चर्स. That is called graphic novels. And one is simple novels, in that there is no any pictures, no any graphics. So the novel written by the Swiss clergyman. Oh, now these words clergyman. Let me ask a question. Please listen my question. Listen my question. Have you heard this word clergyman in any other subject beside this subject? English के अलावा आपने ये जो क्लर्जी मैन है ये वर्ड किसी और सब्जेक्ट में सुना है? इन साइंस, इन मैथ्स और इन सिविक्स, इन एनी अदर सब्जेक्ट हैव यू हर्ड दिस वर्ड क्लर्जी मैन? हेलो हेलो, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. हैव यू हर्ड दिस वर्ड क्लर्जी मैन? वेर इन विच सब्जेक्ट? Why you people are silent, my dear boys and girls? Not grills, girls. हाँ, you are याद कर रहा हूँ, याद कर, नो प्रॉब्लम, आई एम गिविंग यू चांस. मैं चाहता हूँ कि यू मस्ट दैट यू नो दैट एग्जामिन योर ब्रेन. Hear this word. हाँ, I didn't hear this word. अच्छा, you have never heard this word clergyman. No problem. That's why I said you are a students. And studious students, you are studious students, you want to learn the new words. चलो, कोई बताएगा मुझे ये क्लर्जी मैन किधर है? कभी आपने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे? चलिए, कोई बात नहीं. लेट मी टेल यू, आई हैव एक्सप्लेन दिस वर्ड इन हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड 9 रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस. फ्रांस रिवोल्यूशन के अंदर ये वर्ड आया है. पता नहीं ये इस साल की, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग हिस्ट्री दिस ईयर, सो आई डोंट नो, बट दिस वर्ड हैज़ बीन यूज इन दी हिस्ट्री के अंदर ये वर्ड है रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस. फ्रांस का जो रिवोल्यूशन हुआ है ना, उसके अंदर ये वर्ड हुआ है क्लर्जी मैन. सो क्लर्जी मैन का मतलब होता है जो पादरी लोग होते हैं ना, सो जो चर्च के लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड क्लर्जी मैन. आई विल शो द, डोंट वरी, आई विल शो, आई हैव प्रिपेयर एवरीथिंग. कैन यू सी दिस क्लर्जी मैन? स्क्रॉल डाउन योर व्हाट्सअप, स्क्रॉल डाउन करो. नंबर 3 सिनॉप्सिस के बाद में देखिए, क्लर्जी मैन, ए मेल मेंबर ऑफ क्लर्जी, ईसाई चर्च के पुरोहित. देखो, मुझे हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं है, बट आई ट्राई टू रीड. पुरुष सदस्य, ये बीच का एक वर्ड मैंने खा गया, मुझे याद नहीं, शायद वर्ग लिखा है, वर्ग. ईसाई चर्च के पुरोहित वर्ग का पुरुष सदस्य, मतलब मैंने जिसको क्या बोला, जो चर्च के लोग होते हैं ना, पुरोहित वगैरह, पादरी वगैरह, जो दे आर कॉल्ड क्लर्जी मैन. गॉट यू पीपल? हैव यू हर्ड न्यू वन? क्लर्जी मैन. चलिए, सो हु हैज़ रिटन दिस नॉवेल?
Who has written this? Clergyman John. Written by the Swiss clergyman. I said if you are talking, speak loudly with your soul, with your sound. This novel is This written novel by is written Swiss by the Swiss clergyman John. clergyman. Okay, how many people had answer now? How many people have given the answer? Please tell me their name, please. I know Nisha. Sarah and Nisha. And what about other? All others are sleeping. All others are having their breakfast. Or they are relying on Sarah's and Nisha's and अरे आप लोग दूसरे पे भरोसा करके बैठे हो. You people also answers. You are listening my lectures. You all are smart people. Don't scare. This is the opportunity. Online is the biggest opportunity for every student to show their talent. आप लोग को नाइस इंग्लिश स्कूल एक अपॉर्चुनिटी दे रही है. नाइस इंग्लिश स्कूल आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपना टैलेंट दिखाओ. यू शो योर गट्स, करेज. ओके, चलिए, वेल डन. आई होप कि मेरे इतने बोलने के बाद में अदर स्टूडेंट विल आंसर नाउ. So this novel is written by the Swiss clergy John David Wyss. John David Wyss is a clergyman, चर्च का आदमी है. Is not just an adventure. लो, initially पहले क्या बोला गया था? This is an adventure novel. अब बोल रहा है कि it is जस्ट नॉट एन एडवेंचर. ये कोई सिर्फ एडवेंचर की नॉवेल नहीं है कि मार धार और जान जोखम में डालने वाली चीज़ और तरह तरह की एक्टिविटी. नो 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 नो, इट इज़ नॉट जस्ट एन एडवेंचर नॉवेल. इट एम्स. एम का मतलब होता है इसका मकसद है. ये एक चीज़ को लेकर आई है, इसका एक मकसद है. क्या मकसद है इसका? एट टीचिंग यंग पीपल को इस नॉवेल के ज़रिए कुछ सिखाना भी चाहते. क्या सिखाना चाहते? वैल्यूज़ लाइक सेल्फ रिलायंस. वैल्यूज़ मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें, अखलाक वाली चीज़ें, कदरें वाली चीज़ें, जिसकी कोई कदर होती, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ही होती. तो इस नावल के ज़रिए यंग लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी सिखाना चाहता है राइटर. क्या है वो? व्हाट इज़ दिस वैल्यूज़, व्हाट इज़ दिस इम्पोर्टेंट थिंग्स? नंबर वन, सेल्फ रिलायंस. नाउ यू विल आस्क, सर व्हाट इज़ सेल्फ रिलायंस? We know that Dhirubhai Ambani's Reliance Mobile, but what is self reliance? So let me show you the reliance. सेल्फ रिलायंस का मतलब यहाँ पे बताया है दैट नेक्स्ट टू द क्लर्जी मैन. अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी सेल्फ रिलायंस वन ऑन्स ऑन पावर, वन ऑन्स ऑन पावर्स एंड रिसोर्सेज रादर देन दोज ऑफ अदर्स. हर आदमी का, किसी का भी अपने ओन ताकत पर, अपने ओन चीज़ों पर भरोसा करना, दूसरों की ताकत, दूसरों की चीज़ों पर भरोसा ना करना, जिसे कहा जाता है सेल्फ सफिशेंसी, सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ सस्टेंस, सेल्फ स्टैंडेंस, है ना, स्टैंडिंग, इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा करना, खुद के पैरों पे खड़े होना. उसका अपोजिट क्या बताया? डिपेंडेंस, है ना. अब आप तक अभी अभी जो है ना, यू आर द किड्स, यू आर द चिल्ड्रन, यू आर डिपेंडेंस ऑन योर पेरेंट्स. व्हेन यू बिकम यंगर, यू गॉट मैरिड, यू विल बिकम इंडिपेंडेंट. जब आप सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, है ना. तो इस नॉवेल के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई जा रही है कि हर इंसान को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने पास जो जो चीज़ें हैं उसी से काम चलाना चाहिए. गॉट यू पीपल अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट? यस. नाउ दिस स्टोरी स्टार्टिंग. अभी तो स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है, बट इसकी जो जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ. देन व्हाट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टॉट बाय दिस लेक्चर, दिस नॉवेल? दूसरी क्या चीज़ इस नॉवेल के ज़रिए सिखाई जा रही है? डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का मतलब होता है खुद पर एकदम ज़्यादा भरोसा होना, खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना. डिटरमाइन, किसी चीज़ को करने की धुन, भाई मैं ये करके दिखा दूंगा, ये तो मुझे करना ही करना है ना. चलिए देखो, डिटर्मिनेशन का मीनिंग भी यहाँ बताया गया है, प्रोनाउंसिएशन के साथ में बताया गया है ना. द क्वालिटी ऑफ हैविंग फर्मली डिसाइड टू डू समथिंग इवन इफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. देखो क्या लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ हैविंग फर्मली डिसाइड टू डू समथिंग
इवन इफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कठिन स्थिति के बावजूद किसी काम को करने का संकल्प। देखो जैसा मैं हिंदी नहीं आती बट आई एम ट्राइंग टू रीड हिंदी, आई एम ट्राइंग टू रीड हिंदी, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है, नो आई विल लर्न दी हिंदी, कुछ भी हो जाए आई विल लर्न दी हिंदी। तो मेरे अंदर एक फर्मली डिसाइड कर लिया मैंने, अपने आप को फर्मली क्या कर लिया, मजबूती से एक इरादा कर लिया मैंने। तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मजबूत इरादा। क्या होता है, मजबूत इरादा, हिम्मत, है ना। चलिए गॉट यू पीपल, मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Okay, okay, well done, well done. I appreciate you people. I appreciate you people. You understand the meaning. So it aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family. Oh my God, oh my God. The very important thing is that लव फॉर योर फैमिली, अपनी फैमिली से प्यार मोहब्बत करना। देखो जब आदमी कहीं बिछड़ जाता है ना कभी पता नहीं, आई डोंट नो इट इज़ हैपन विथ यू, एंड अल्लाह करे किसी के साथ में कभी भी नहीं हो। मे बी अगर आप कहीं गए हो कोई बाज़ार वगैरह में, मे बी यू इन सम बिग फेरी प्लेसेस, और कोई जो ऐसा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मेला वेला लगता है ना, तो वहाँ पर कभी बिछड़ जाते, होता है ना सर, कभी बिछड़ जाते। तो उसमें क्या होता है, देन यू मिस योर फैमिली, और योर लॉ माई अम्मी, वेर इज़ माई अम्मी, वेर इज़ माई अब्बू, वेर इज़ माई ब्रदर, एंड स्टार्टेड क्राइंग। सो व्हाट आई वाज टेलिंग, जब आपको रियलाइज़ होता ओ अल्लाह, अम्मी अब्बा भाई बहन, है ना, ये सब की वैल्यूज़ कब आती है, जब आप किसी से बिछड़ जाते हैं। तो ये स्टोरी में भी यही बताया जा रहा है, स्टोरी में भी यही बताया जा रहा है कि what it is explaining here, the love of your family, अपनी फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, उनसियत होनी चाहिए। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, साथ में काम करना, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करना, है ना। लेट मी सी द मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन ऑल्सो हियर, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, सो वाइल आई एम गोइंग। Cooperation means working together with somebody else to achieve something, है ना, किसी के साथ सहयोग, है ना, किसी के साथ में मिलकर कोई चीज़ को हासिल करने के लिए कोई काम करना, कोऑपरेशन बोलते हैं उसको, साथ में मिलजुल कर काम करना, कोई भी खास मकसद को हासिल करने के लिए, दैट्स कॉल्ड कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती है, आपने सुने होंगे, ठीक है। एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रूडेंट, what is the pronunciation, prudent, ठीक है, prudent। what is the meaning of prudence का मतलब होता है कोई भी चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, प्रॉपरली इस्तेमाल करना। देखो यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजन। जब भी आप कोई जजमेंट लेते हो या कोई डिसीजन लेते हो तो आप कितना सेंसिबल होते हो, बहुत ज़्यादा केयरफुल और बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पे प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, आपके पास में जो भी चीज़ें, जो को ये क्या बता रहा है कि जब ये लोग भटक गए ना, तो इनके पास में बहुत कम चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने उन कम चीज़ों का बहुत ही ख्याल रख के, बहुत ही एहतियात से, बहुत ही ध्यान से उसका इस्तेमाल किया। तो ये नावल से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेस है, अगर आप कहीं भटक गए, अल्लाह नहीं करे, खुदा नहीं करे, है ना, इन केस इफ़ यू लॉस्ट, आपके पास में बहुत कम चीज़ें, तो आप उन चीज़ों को वेस्ट मत करो, उन चीज़ों का बहुत ही ध्यान से, है ना, बहुत ही प्रूडेंट इस्तेमाल करो, बहुत ही ख्याल करके, केयरफुली। तो यहाँ पर प्रूडेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ को बहुत ही एहतियात से, बहुत ही ध्यान से क्या करना, यूज़ करना, ठीक है। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ प्रूडेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. I Yes, understood. sir, I have understood. हाँ, एंड यू रीडिंग दैट मीनिंग ऑल्सो वाइल आई एम स्क्रोलिंग डाउन। मीनिंग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? आप लोग के पास ही है, मैं तो उसको स्क्रीन शेयर नहीं किया है ना, आई हैव नॉट शेयर माई स्क्रीन। तो उसको प्लीज़, जब मैं बोलूँ स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन, आपके व्हाट्सएप पे मीनिंग आया है कि नहीं आया, टेल मी दैट फर्स्ट। Yes, sir. हाँ तो प्लीज़, हाँ प्लीज़ उसको पढ़ते रहो, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होगी, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए ठीक है। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ गुड लेसन्स रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस। अच्छा देखो, इस नावल के अंदर आपको एक बहुत अच्छा लेसन भी सिखाया गया है।
जो किससे रिलेवेंट है, नेचुरल साइंस से रिलेवेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेवेंट? लेट मी शो द मीनिंग ऑफ रिलेवेंट. स्क्रॉल डाउन करो प्लीज, नीचे लाइए. अभी आपने देखे होंगे एक वर्ड्स प्रूडेंट, प्रूडेंट के बाद में रिलेवेंट. कनेक्टेड विथ व्हाट इज हैपनिंग और बीइंग टॉक अबाउट, है ना. किसी भी चीज़ के साथ में क्या होना, संबंध होना, उसके साथ में उसके ताल्लुक होना, उसका मुनासिबत होना, है ना, उसकी मेल जोल होना. ठीक है, रिलेवेंट बोलते हैं कि नहीं. ये लेसन जो है आज की स्टडी से बहुत रिलेवेंट है. अभी कोई कोई वाक़या हो गया, आप बोलेंगे ये वाक़या जो है ना आजकल के हालात से बहुत ही रिलेवेंट है. कोई किस्सा आपने पढ़े पुराने ज़माने का और वो किस्सा आज के ज़माने से मेल खा रहा, तो आप क्या बोलेंगे, वो किस्सा जो है आज के ज़माने से मेल खा रहा है, मिलता जुलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिलेवेंट. दैट इज़ कॉल्ड रिलेवेंट. तो इस लेसन के अंदर एक बहुत अच्छा नॉवेल के अंदर एक गुड लेसन है जो नेचुरल साइंस से रिलेवेंट है. नेचुरल साइंस, यू ऑल नो दैट नेचुरल साइंस जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद है ना, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल साइंस. में भी जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, समुंदर हो गया, उसके अंदर जो भी चीज़ें दो, जिसके लिए हमको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. एंड गुड हस्बेंड्री. ओके, हस्बैंड तो सबको मालूम है. हस्बैंड, यू ऑल नो दैट व्हाट इज हस्बैंड. एंड गुड ऑल्सो यू नो, गुड हस्बेंड्री मीन्स बहुत अच्छा हस्बैंड बनने का. ऐसा मतलब ये लेसन नॉवेल में ये भी सिखाया है कि हस्बैंड को बहुत अच्छा होना चाहिए. ऐसा मतलब वाइफ अच्छी नहीं होगी चला. इट्स नॉट लाइक दैट. गुड हस्बेंड्री मीन्स, लेट मी टेल द मीनिंग ऑफ गुड हस्बेंड्री. आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा प्लीज. द वर्ब टू हस्बैंड मीनिंग टू मैनेज केयरफुली. इसलिए हस्बैंड बेचारा घर बहुत अच्छे से चलाता है. दे आर कॉल्ड हस्बैंड. टू मैनेज केयरफुली, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्या करना, मैनेज करना. एंड गुड हस्बेंड्री का मतलब होता है फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, खेती वगैरह करना, जानवर वगैरह पालना. दिस ऑल आर रिलेटेड टू दी गुड हस्बेंड्री. सबको क्या बोलते हैं, गुड हस्बेंड्री बोलते हैं. इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. GOOD गुड का मतलब होता है अच्छा, और GOODS गुड्स का मतलब क्या होगा, GOODS गुड्स. इफ GOOD गुड है तो उसका मतलब होता है ओके, गुड, फाइन, नाइस, ओके, है ना. बट GOODS गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GOODS गुड्स? Things to be transported. See, people are smarted. They all are smart. Sarah, you are very smart. You must have seen in Google or in somewhere and you just translate it. I applause you. I applause you. Well done, well done, well done, Sarah. So, goods, GOODS गुड्स, मैंने हमेशा देखा है गाड़ी के ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर. वो जो बड़ी बड़ी गाड़ी आती है ना, 4 व्हीलर, एक तो होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करती है, बसेस है ना, और एक होती है जो सामान लेके जाती है. दे आर कॉल्ड गुड्स कैरियर्स. कैरियर्स, गुड्स कैरियर मतलब सामान लेके जाने वाली गाड़ी. कैरियर वो कैरियर नहीं, फ्यूचर, हाँ. कैरियर मतलब उठाने वाला कैरियर. ठीक है. सो गुड्स, GOODS गुड्स का मतलब होगा सामान, चीज़ें जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं. और GOOD गुड का मतलब होता है अच्छा. वेल डन सारा अहमद खान, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात है. सारा, यू आर वेल डन, यू आर वेरी लॉट्स ऑफ गट्स यू हैव गॉट. ओके, इट्स माय प्लेजर. ऑल द पीपल, मैंने पहले बताया दिस लेक्चर इज बीन रिकॉर्डेड. लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. यू आंसर विथ योर नेम, आई विल अप्रिशिएट यू. यू डोंट आंसर, आई डोंट नीड टू अप्रिशिएट यू. चलिए ठीक है. दिस लेसन, इन दिस नॉवेल देर आर सो मेनी थिंग्स, like good values, है ना, like self reliance, determination, love for your family, cooperation, prudent use of resources, है ना. and there are good lessons relevant to natural science, good husbandry and even mathematics law. इस नॉवेल के अंदर मैथमेटिक्स भी सिखा रहे. अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मैथमेटिक्स तो सर का दर्द है, इससे अच्छा नॉवेल ही मत पढ़ाओ हमको. नो प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स बहुत थोड़ी देर के लिए आएगा. ले चलिए, some elements of the novel. some element मतलब you must have heard this word. चलिए बताइए, ये वर्ड आपने किधर सुना है? आप कोई नहीं बोलना कि ये वर्ड हमने नहीं सुना है. डोंट टेल मी दैट आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड बिफोर. एलिमेंट,
इन विच सब्जेक्ट यू हैव? Max. subject. मैथ्स में सुना है, आई डोंट नो मैथ्स के अंदर एलिमेंट, मैंने तो कभी नहीं सुना एलिमेंट। मैथ्स में तो मैंने नहीं सुना, आई डोंट नो बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर, बट मैंने कहीं तो सुना हो ये वर्ड। साइंस, यस, इन साइंस, यस 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 यस, साइंस के अंदर ये वर्ड आता है एलिमेंट, दिस वर्ड कम इन साइंस। वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स, जिसने भी आंसर दिया। किसने किसने आंसर दिया साइंस वाला? टेल द नेम प्लीज। डोंट टेल, मैंने दानियाल, दानियाल अंसारी, दानियाल हुजैफा अंसारी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हु एल्स? और कौन था? मंतशा, मंतशा, वेल डन। हु एल्स? सारा, सारा के सारा, जहाँ हमारा, सारा हमारा, चलो सारा, वेल डन। हु एल्स? निशा, निशा, निशा राठौड़, वेल डन निशा, वेल डन वेल डन वेल डन। चलिए ऐसे जवाब देते रहिए, आई विल अप्रिशिएट यू, मैं आपकी बहुत तारीफ करूँगा। सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल डू स्ट्रेच रियलिटी टू सर्टन एक्सटेंट। ओ बहुत भारी वर्ड है, बहुत बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या मीनिंग इसके अंदर आ गया है। सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टन एक्सटेंट। चलिए मुझे इस सेंटेंस का मीनिंग कौन बताएगा? मेरे पास में अभी 11 मिनट बचा हुआ है और एक ही पैसेज, मुझे एक ही पैसेज, आई हैव टू कंप्लीट वन पैसेज, तो मैं 10 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, टेल मी, सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? I am sorry, I am not feeling well. I had a cough, that's why I am sneezing. So tell me, what is the meaning of this sentence? अरे हिंदी में बोलो, किस में भी बोलो, चाइनीज़ में बोलो, मराठी में बोलो, इन एनी लैंग्वेज, जस्ट वांट टू नो आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? सम एलिमेंट्स ऑफ दिस नॉवेल डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टन एक्सटेंट। चेक इट, you got dictionary, you got Google uncle, you got YouTube channel, you got everything, चलो चेक करके बता दो। इसके अंदर ऐसा बोला गया कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो रियलिटी को वो करती है। यस यस, यू आर राइट एंड सम एक्सटेंट, एट सम एक्सटेंट यू आर राइट। आपने कुछ हद तक तो सही बोला है, कुछ हद तक आपने हिंदी में बोला। व्हाट्स योर नेम माय डियर बॉय? साजिद, साजिद, हु साजिद? देयर आर सो मेनी साजिद, कंप्लीट नेम? साजिद रिजवान खान, वेल डन साजिद रिजवान खान। लेट मी से, बिकॉज इन रिकॉर्डिंग में भी साजिद की आवाज़ नहीं आएगी, बट व्हाट साजिद हैज़ सेड मैं वो बता दूँ। साजिद बोलना चाहते हैं कि इस सेंटेंस से ये बताना चाहते हैं कि इस नॉवेल में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको, कुछ चीज़ों को पढ़ने से हमको ऐसे लगेगा कि ये तो सच में हो रहा है। साजिद ये बोलना चाहते, इजंट इट साजिद? दैट्स व्हाट यू वांट टू से ना? यस यस यस, साजिद ने ऐसा बोले है। ओके, वेल डन साजिद, यू आर राइट। इसका मतलब क्या है मैं बता दूँ। सम एलिमेंट ऑफ द नॉवेल, इस नॉवेल के कुछ हिस्से से, इस नॉवेल के कुछ हिस्सों से, एलिमेंट मीन्स हिस्सा, पार्ट्स, है ना, ठीक है। डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सर्टेन एक्सटेंट मतलब होता है किसी हद तक, सर्टेन एक्सटेंट मतलब किसी हद तक, स्ट्रेच रियलिटी मतलब हमारा दिमाग जो है ना ऐसा हमको लेके जाता है कि भाई ये सच में हो रहा है। मतलब इसका बोलने का ये है कि ये नॉवेल जब आप पढ़ेंगे ना, तो नॉवेल को इतने अच्छे अंदाज में लिखा गया है, इतने अच्छे अंदाज में, इतने अच्छे अंदाज में, इन सो अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग उसमें तैयार किया गया है कि ये नॉवेल पढ़ने से आपको ऐसे लगेगा कि ये रियल में हुआ था। ये जो वाक़या है ना रॉबिन्सन फैमिली वाला, ये रियल में हुआ था। इसको बोला गया डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। नॉवेल को पढ़ने से, नॉवेल के कुछ हिस्सों को पढ़ने से ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें रियल में हुई है। गॉट यू पीपल? इसका मतलब ये होता है। बट वी मस्ट कंसीडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। लेकिन हमको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि ये रियलिटी में हुआ नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, दिस इज़ वर्क ऑफ फिक्शन। देखो, वर्क ऑफ फिक्शन, स्ट्रेच का मीनिंग भी चले गया, कंसीडर भी आ गया। फिक्शन इज एन एनी क्रिएटिव वर्क, है ना, चीफली एंड नैरेटिव वर्क जो क्रिएट किया गया, दिमागी, ख्याली, इमेजिनरी। फिक्शन का मतलब होता है जो चीज़ें फिक्शन सब अपनी ख्याली है, सोची समझी है, बनाई हुई है,
रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इमेजिनेशन। इमेजिनरीज जिसको बोलते हैं इमेजिनरी फिक्शन, ठीक है, साइंस फिक्शन बोला जाता है। बहुत सारी मूवीज़ होती है हॉलीवुड की, दे आर बेस्ड ऑन साइंस फिक्शन। चलिए तो क्या बोला है, हाँ ऐसा बोला है कि सम एलिमेंट ऑफ द नॉवेल डू स्टेज रियलिटी टू अ सर्टन एक्सटेंट तक हमको किसी हद तक ये जो नॉवेल है ना ऐसा लेकर जाएगी कि रियल में हो रहा है। बट वी मस्ट कंसीडर दैट इट इज़ वर्क ऑफ फिक्शन। बट हमको एक चीज़ अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, एक चीज़ हमको कंसीडर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये तो सिर्फ नॉवेल है, वर्क ऑफ फिक्शन है, सोची समझी कहानी है, एंड नॉट अ फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल ये कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। गिवन बिलो इज ए सिनॉप्सिस, गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस, नीचे जो है ना वो सिनॉप्सिस है। अब देखो सिनॉप्सिस का मीनिंग बताया है, एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी, बेसिक स्टोरी का एक खाका, आउटलाइन मतलब खाका, खाका होता है ना जिसके अंदर सब चीज़ें आ जाती, समरी भी बोल सकते हो उसको आप। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं सिनॉप्सिस, ये समरी है, और समरी किसकी है, ये समरी है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। गॉट यू पीपल, नाउ लेट मी, एक और पैराग्राफ मैंने आधा तैयार किया तो लेट मी कंप्लीट। विलियम एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप, ट्रैवलिंग इन अ शिप, शिप में ट्रैवल कर रहे। हु आर ट्रैवलिंग इन अ शिप? विलियम एलिजाबेथ एंड द Edward and their children. Okay, well done, well done, well done, well done. When a ship is in a ship, when the ship was caught in a great storm, एक बहुत बड़े तूफान में, बहुत बड़े समुंदरी तूफान के अंदर, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, है ना, सडनली चेंज ऑफ मेट्रोलॉजिकल्स, जो भी अपना जो मेट्रोलॉजिकल है ना, अपना जो मौसम है उसमें जो चेंजेस आती है, दे आर कॉल्ड स्टॉर्म, तो अपन यहाँ पे तूफान बोलेंगे। उनकी कश्ती जो है ना, जहाज़ जो है ना, एक बड़े से ग्रेट ग्रेट बहुत बड़े स्टॉर्म के अंदर फंस गया। अच्छा लेट मी आस्क यू वन थिंग, हाँ, कैन यू टेल मी द स्पेलिंग ऑफ ग्रेट? कैन यू टेल? यस यस, GREAT, GREAT, great. Can you tell me the synonyms, homophones of great? Great का एक homophones भी आता है। Yes, tell me what is the homophones of great? Well done. What's your name? My goodness. Who's that person? कौन है, लड़का लड़की? निशा, 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 well done निशा, well done निशा, excellent, majestic, awesome, brilliant, priceless, miraculous, radiant. Nisha, you are Nisha, you are radiant, you are priceless, great, GRATE, great. The meaning of that great, GREAT, great मतलब बहुत बड़ा, है ना, अल्लाह इज ग्रेट, ठीक है। एंड अनदर वन GRAT, ग्रेट मतलब थैंक, आई एम ग्रेटफुल, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, दैट इज होमोफोन्स, सेम साउंडिंग, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग्स। यस, वेल डन। सो उनका जो कश्ती है ना वो एक जहाज़ में फंस गई। द अदर पैसेंजर्स एवैक्यूएटेड, 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 ठीक है ना, दैट क्वाइट डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन, एवैक्यूएटेड। विदाउट देम, एवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कर देना, छोड़ के चले जाना, ठीक है ना, मेरे पास में लिखा हुआ है बट आई एम नॉट शोइंग, आई हैव गॉट 3 मिनट्स रिमेनिंग ओनली। सो द अदर पैसेंजर्स एवैक्यूएटेड विदाउट देम, उनको छोड़कर कश्ती खाली करके चले गए, ठीक है ना। अब अंदर कौन कौन रह गया? विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन फिट्स, एर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। बाकी सब लोग चले गए छोड़ के, विलियम की फैमिली, उसके बच्चे अंदर सर्वाइव करने के लिए रह गए, ठीक है बॉयज़ एंड गर्ल्स। दे वेदर द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड। वेदर, वेदर का एक बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मौसम भी होता है। यहाँ पे वेदर का मतलब है किसी भी मुश्किल का सामना करना, मुश्किलात का सामना करना, किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन और सिचुएशन का सामना करके उभरना, है ना। तो उन्होंने इस बहुत ही बड़े तूफ़ान का क्या किया?
सामना किया और सामना करके जो है वो उस तूफान से वो बाहर निकले। सी अभी कोई जॉइंट हो रहा है एकदम एन टेम्पर 11:48 को कोई जॉइंट हो रहा है। हाउ रिड्यूक्लेस है ना, नॉट गुड। लेक्चर ख़त्म होने आया, 2 minutes आर रिमेनिंग एंड समबडी इज ज्वाइनिंग, आई डिडंट अलाउ। सो व्हाट हैपन, दे वेदर द ग्रेट स्टॉर्म, उन्होंने बड़े से तूफान का सामना किया। वेटिंग इन द शिप्स होल्ड, शिप्स होल्ड का मतलब होता है जहाँ पर कार्गो रखते हैं ना, सामान वगैरह रखते, देखे होंगे ना, शिप्स के नीचे का हिस्सा होता है बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर कार्गो सामान वगैरह रखा जाता है, ठीक है। द शिप सर्वाइव्ड द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ। चलिए ठीक है, यहाँ तक का मैंने आपको पढ़ा दिया, द शिप्स होल्ड तक का। नाउ एज आई सेड के द लेक्चर हैज़ बीन रिकॉर्डेड, लेक्चर को रिकॉर्ड किया गया है। नाउ आई विल आस्क सर्टन ग्रामर्स अबाउट टेंस। टेंस का मैं ग्रामर पूछूंगा, ठीक है ना, टेंस का ग्रामर पूछूंगा, बिकॉज ये लेसन के अंदर टेंस का ग्रामर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच द ग्रामर ऑफ टेंसेस। सो आर यू रेडी टू आंसर द टेंस ग्रामर? नॉट टेंस मतलब वो टेंशन वाला टेंस नहीं, हाँ बोलेंगे सर क्या टेंशन दे रहे हो आप, तो हमको टेंस में डाल रहे हो। नो नो नो, द टेंस, टेंस वाला ग्रामर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो वाला ग्रामर, ठीक है। सो इन द लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, विलियम एलिजाबेथ एंड द चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग। चलिए बताइए कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस है, विच टेंस यूज इन दिस सेंटेंस? Present tense. प्रेजेंट टेंस। अल्लाह, oh my god, where are you boy, where are you boy girl? It is not present tense. Don't answer in the end of the lecture ridiculous answers or stupid answer. Present perfect tense, no my dear, wrong. It is not present perfect tense at all, at all, at all. It is not present perfect tense. सी हैड यूज हुआ है, बीन यूज हुआ है और कंटिन्यूस का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज हुआ है। Oh my goodness, who's this boy, who's this girl, who's this students? Tell me please name. I am very much excited. Nalban Mantasha White, clap everybody for Nalban Mantasha White. All the students please quickly applause. Myself also I am clapping. Well done, well done, well done. It is past perfect continuous. Had आता है past में, बीन आता है परफेक्ट में और आईएनजी वाला वर्ब रहेगा तो वो कंटिन्यूस कहलाता है। तो दिस सेंटेंस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स अ फाइनल क्वेश्चन। अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करने का है, आपको बोर्ड के एग्जाम में आएगा चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या चेंजेस करेंगे ये बताओ। चलो परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर इसको चेंज करने के लिए बोला जाएगा, इफ़ यू वेर आस्क्ड टू चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो व्हाट चेंजेस यू विल डू? देखो देखो देखो, दो बच्चे ने जवाब दिया है, दोनों ने कुछ तो बोले है, किसी ने बोला है हैज़ बोला है, किसी ने कुछ और बोला है। तो जो बच्चे ने हैज़ बोला उसका नाम क्या है? साजिद ने बोला हैज़। चलिए, और एक बच्चे ने जवाब दिया था समबडी एल्स आल्सो स्पोकन। सारा ने क्या कहा? सारा व्हाट यू सेड? हैड, हैव, एच ए, हैड तो लिखा हुआ है ना। HAS for sheep. अच्छा, एस फॉर शिप, हैज़। और कौन जवाब देगा? Sir have been chatting. देखो देखो, अभी तक सबने, मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोला तो बीन भी आएगा और आईएनजी भी आएगा। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए बोला मैंने, ठीक है। Their children have been traveling. कौन बोल रहा है? हु इज टेलिंग? सारा।
सारा बोलिए हैज़ आएगा, HAS आएगा। साजिद ने बोला HAS आएगा। और कौन बोलना चाहता है आंसर? जल्दी जल्दी दो, टाइम नहीं है। नाउ दैट राइट हैव। किसी ने हैव बोला, आई थिंक सारा ने हैव बोला है। सारा ने हैव बोला है। आई डोंट नो, आपने मैं कौन हैव बोला था? मैंने बोली थी नहीं सर, आई टोल्ड। निशा इंग्लिश बोलो। निशा ने बोला था, निशा सेड हैव, बट आई डिडंट हियर। सॉरी निशा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने सुन नहीं पाया। बट कॉन्ग्रेचुलेशन निशा, कॉन्ग्रेचुलेशन सारा, एंड दैट साजिद ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने कुछ तो सही बोले। यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल बन जा रहे। विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन, देर आर नॉट ओनली सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, वेल डन, एक्सीलेंट, सुपर्ब, फिनोमिनल। नाउ आई रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज डोंट लीव द क्लास, लेट मी टेक द अटेंडेंस. If I'll take the attendance, my attendance completed, then please you can leave the classroom. But before leaving the classroom, I request you all people, please send me your feedbacks. Your feedbacks, it's a medicine for the teacher. आपका feedbacks टीचर के लिए जो है ना एनर्जी होता है, नॉट दैट एनर्जी वो जो सचिन तेंदुलकर वगैरह ने जो बूस्ट वगैरह नहीं, इट्स समथिंग अ डिफरेंट एनर्जी जो हमारे को टीचर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और अच्छा पढ़ाने के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ सेंड योर फीडबैक्स, एंड आई डोंट वांट दैट कि आप अच्छा ही फीडबैक्स, आपको नहीं अच्छा लगे तो आप बोल सकते हो कि सर हम लोग को अच्छा नहीं लगा लेक्चर। ठीक है, सो डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट, आई रियली अप्लाउज यू पीपल. So that's good. Somebody said fabulous. Who said this? The lecture was fabulous. Sajid, thank you very much. You appreciate about my lecture. Inshallah, next day you will get good lectures again. So all the tremendous, all the magnificence, all the solitary, startling, and brilliant, awesome, and outstanding students, I am going to स्विच ऑफ लेक्चर्स में ख़त्म करने जा रहा हूँ बाय टेलिंग यू बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट डे. ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू पीपल, जो व्हाट्सएप में मैंने आपको भेजा है ना मीनिंग वगैरह, उसको पढ़ो, उसको रीड करो. ठीक है.